So starting with the basics part. So in the introductory part of solid state, there were two types of solids which were classified on the basis of arrangement. So if the constituent particles in a particular solid are arranged in a systematic manner and their pattern is repeated over a long range, या उसको long range order बोलते हैं, those type of solids are crystalline in nature, and the other type in which there is a randomized arrangement of constituent particles and there might be a repeating pattern but for a short range, those solids are called amorphous solids. अब इनकी कुछ properties है, उसके ऊपर question है, let's see. Amorphous solids possess sharp melting point, true or false? False. False. Crystalline solids में orderly arrangement होता है, तो they melt at a particular temperature. But amorphous में rubber, plastic, ये जो होते हैं, they melt over a range of temperature. They don't have a sharp melting point. Undergo clean cleavage when cut with a knife. Again, False. False. because this is the property of crystalline solids. Do not undergo clean cleavage when cut with a knife. Yes, this is true for a amorphous solid. So यही आपका आंसर भी है. And possess orderly arrangement over long distance. False for amorphous, true for crystalline. Next, about Bravais lattices, we know there are 14 overall types of Bravais lattices. 7 main type होते हैं, सब type को मिलाया तो 14 होता है. So tetragonal crystal system has the following unit cell dimensions. What is the correct answer? Second. Second, A is equal to B but not equal to C, and alpha, beta, gamma, the axial bond angles are equal to 90 degree. Axial angles, not bond angles, sorry. Which of the following are correct axial distance and axial angles for rhombohedral system? One. One. Rhombohedral was a distorted form of cubic wherein the sides are equal, the angles also remain equal, but they become non-90 degree. तो अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल होता है लेकिन 90 के बराबर नहीं होता है. That is, I can say, distorted form of the cubic system. ठीक है. अब मुझे बताओ, which is the most symmetrical Bravais lattice? Most symmetrical कौन सा होता है? Of course, सबसे symmetrical cubic होता है ना. और most unsymmetrical, जिसमें साइड्स अनइक्वल होते हैं, एंगल्स अनइक्वल होते हैं, वो कौन सा है? Triclinic. ट्राइक्लिनिक. तो ये भी ध्यान रखो कि among the 14 Bravais lattices, most symmetrical is cubic where the sides are equal, angles are equal to 90 degree, and उससे opposite में सबसे unsymmetrical होता है ट्राइक्लिनिक. ठीक है. सब टाइप्स को याद रखने के लिए मैंने सब टाइप्स को याद रखने के लिए टेट्रागोनल के लिए आई हैड गिवन टीबी. टीबी से याद रख सकते हो, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड. rhombohedral, was rhombohedral having any subtype? Yes. कौन कौन से? Primary. सॉरी, rhombohedral में सबटाइप नहीं था. याद रखना, RHT, rhombohedral hexagonal triclinic, has only one, that is a basic primitive simple cubic cell. rhombohedral में सबटाइप नहीं था. ऑर्थोरोम्बिक में चारों सबटाइप था. ऑर्थोरोम्बिक, that is SCC, BCC, FCC and end centered ECC. This is how you are supposed to remember. Monoclinic के लिए एक सबटाइप था to be remembered as me, that is एक तो primitive और दूसरा end centered. हो गया. ऐसे आप क्लियरली चारों 14 Bravais lattices याद रख सकते. Next, number of Bravais lattices in 2 dimensions are. Now, whatever Bravais lattices 14 we have studied, they are obviously in the 3 dimension. 2 dimension में there are 5 types of Bravais arrangement which are possible.
जैसे if I have the lattice points arranged in the 2 dimension and they are arranged in an aligned manner, तो एक तो square arrangement हो सकता है where the two sides and the angle is equal to 90 degree. दो sides equal होते हैं और एंगल 90 डिग्री, जैसे वहां पर क्यूबिक था, यहाँ पे स्क्वायर होगा 2D में. फिर डिस्टॉर्टेड में साइड्स अनइक्वल रखो तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा. ठीक है, साइड्स और एंगल नॉन 90 अगर कर दे तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है. तो ऐसे अगर लेटाइस पॉइंट्स अनअलाइंड मैनर में अरेंज करेंगे तो और 3 टाइप आपको मिल सकते हैं. तो इन शॉर्ट याद रखना 2D ब्रेवाइस लेटाइसेस 5 टाइप के होते हैं और 3D में ऑब्वियसली 14 टाइप्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, दिस इज अ फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट, sodium metal crystallizes as a body-centered cubic lattice. The moment you see body-centered, मतलब Z की वैल्यू दिमाग में स्ट्राइक हो जानी चाहिए. It's equal to 2 with the cell edge of 4.29 angstrom, which is equal to A. What is the radius of sodium atom? Now, whenever edge or radius का relation पूछा जाए, तो for a particular unit cell, we know the relation between A and R. So for BCC, what is the relation? 4R is equal to 8. 4R is equal to the body diagonal, which is equal to √3A. पूरा ऐसे याद रखो, 4R is equal to √3A. कहीं क्वेश्चन में बॉडी डायगोनल पूछ लिया तो √3A का आंसर आएगा. अब यहाँ पर the answer of this would be R equal to √3A upon 4, which is equal to 1.732 times the edge length is 4.29 and divide by 4. This will give you the answer in angstrom and आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 1.07 के आसपास और ये थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 के आसपास आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.8 का आंसर. अब इसमें दो चीजें याद रखो. मान लो आपको R दिया हुआ है रेडियस एंड यू आर सपोज टू फाइंड द एज लेंथ. तो फॉर द BCC इट विल बी इक्वल टू 4R बाय √3. ठीक है, फॉर BCC. और FCC का रिलेशन क्या है? FCC 4R is equal to √2A. 4R is equal to √2A. तो A का वैल्यू उस केस में 4R अपॉन √2 हो जाएगा. Now just remember the reciprocal of √3 and √2 so that the calculation will be very easy. √3 का reciprocal होता है 0.58. Mug it up. 0.58 और √2 का होता है 0.47. सॉरी 0.7. तो ये 0.58 इंटू 4R का रिलेशन हो जाएगा और ये 0.7 इंटू 4R. Reciprocal of √3 0.58 or reciprocal of √2 is 0.7. This makes the calculation very easy. ठीक है, next, this is a good question. Potassium has a BCC structure. BCC structure Z2 हो गया with the nearest neighbor distance 4.52 angstrom. Now what is nearest neighbor distance? NND. अगर दो एटम्स है तो उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? A. 2R. 2R. अरे भाई, if two atoms are just touching each other, then their nearest neighboring distance is equal to 2R. तो जो A का वैल्यू है वो सिर्फ SCC के लिए काम करेगा ना, because A is equal to 2R in SCC. अगर BCC में बोला जाए तो 2R जो है वो √3A/2 हो जाएगा. तो NND in BCC is √3A/2. आता है समझ में? हेलो हेलो. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC में इट विल बी इक्वल टू
√2a/2 मतलब a/√2 हो जाएगा, समझा? NND इज इक्वल टू 2R। तो अगर मैं यहाँ पर जस्ट समराइज कर लूँ आपके लिए, तो NND फॉर लिख लो, SCC इज इक्वल टू A, BCC इज इक्वल टू √3a/2 एंड FCC के लिए a/√2। तो ये 0.866a हो जाएगा और ये 0.7a हो जाएगा, बिकॉज √2 का रेसिप्रोकल 0.7 होता है। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पर BCC के लिए दिया है, तो जो NND है 2R वो √3a/2 के बराबर होगा। देन इट्स एटॉमिक वेट पोटेशियम का, दैट इज मोलर मास, इज 39। इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला दिया है डेंसिटी का, which gives you the answer in gram per cm cube. What is the formula? Z into M upon NA into AQ. मॉडिफाई करके, पावर्स को बैलेंस करके एक फॉर्मूला मैंने बताया था, where the H length in picometer is converted into the centimeter. हाँ, 10Z upon 10 Zm upon AQ into 6. बस पावर्स को ऑलरेडी बैलेंस करके ये शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, 10 Zm/a³ into 6, जहां पर a जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी इन द सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको डेंसिटी फाइंड करने के लिए z पता है, m पता है, a नहीं पता है, बट a पता करने के लिए NND दिया है। तो NND फॉर BCC which is equal to 2R is equal to √3a/2 and this is given to be 4.52 एंगस्ट्रॉम में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर √3a जो है that will be equal to 9 मल्टीप्लाई हो गया 2 and a in turn will be equal to 9 upon √3। अब यहाँ पर √3 का रेसिप्रोकल 0.58 है, तो 0.58 into 9, तो 0.58 into 9, 72, 45 and 7, 52 and 5 and 5.22 is the answer। ये मिल गया आपको a का वैल्यू। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.22 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और यही वैल्यू है जो आपको सिर्फ 5.22 सब्स्टिट्यूट करना है a³ में इन दिस 10 Zm/a³ into 6 वाले फॉर्मूला में। अब पंगा ये है कि कैलकुलेशन में क्यूब आ रहा है, तो डेंसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 into 2 into 39 अपॉन 5.22 का क्यूब into 6। दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 2 डिजिट का क्यूब फाइंड करने का एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली वैदिक मैथ्स का शॉर्टकट ट्रिक है ये। सो हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर 5.22 जो है यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस टू 5.2, राउंड ऑफ कर लो। अगर 5.28 होता तो 5.3 करके आप राउंड ऑफ कर सकते थे। तो 2 डिजिट का क्यूब फाइंड करने के लिए लेट्स से मुझे 52 का क्यूब फाइंड करना है, डेसिमल बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 प्लेसेस का डैश बना दो, 4 प्लेसेस का डैश। द फर्स्ट प्लेस इज इक्वलेंट टू द क्यूब ऑफ द फर्स्ट डिजिट, 5 का क्यूब 125। लास्ट प्लेस सेकेंड डिजिट का क्यूब यानी 8। फर्स्ट प्लेस पहले डिजिट का क्यूब, लास्ट प्लेस सेकेंड डिजिट का क्यूब। अब जो सेकेंड प्लेस है ना, उसमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकेंड नंबर इनटू पावर, पहले का स्क्वायर सेकेंड डिजिट इनटू पावर। और थर्ड प्लेस में क्या करोगे, उल्टा, पहला डिजिट इनटू सेकेंड डिजिट का स्क्वायर इनटू पावर, और वो नंबर यहां पर लेकर आओगे। तो 5 स्क्वायर 25 into 2 is 50 into 3 150, एंड ये 5 into 4 20 into 3 is 60। क्लियर?
अब यहाँ पर एक एक डिजिट को आपको नीचे लेकर आना है, मतलब लास्ट डिजिट जो है उसका 8 नीचे ले लिया, 60 का सिर्फ 0 लेंगे और 6 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 150 में, तो ये हो जाएगा 156। उसका 6 नीचे लेकर आओ और 15 को कैरी फॉरवर्ड करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 140। 52 का क्यूब इज 140608। विद इन सेकेंड्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब 5.2 का क्यूब मतलब 140.608, हमारे कैलकुलेशन के लिए हम इसको 141 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार फिर से, फर्स्ट प्लेस इज फर्स्ट डिजिट का क्यूब, लास्ट प्लेस इज लास्ट डिजिट का क्यूब। बीच वाले दो प्लेसेस में, पहले केस में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट इंटू द पावर, और दूसरे में फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू पावर। फिर एक एक डिजिट नीचे लो, कैरी फॉरवर्ड करो, वो नीचे लेकर आओ तो आंसर मिल जाएगा। फाइन। सो क्यूब फाइंड करने के बाद नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन। इट्स 10 into 2 into 39 divided by this will be approx 141 into 6। अब ये 2 times 3 और 3 times 13, तो आपका कैलकुलेशन 130 अपॉन 141 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स करूँ तो इसको 140 लेकर 13 by 14 ले सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.9 के आसपास आएगा। अब ये मेरा आंसर ग्राम पर cm क्यूब में आ रहा है, आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है, तो इनटू 1000 हो जाएगा, which will be somewhere in the range of 900। अब ऑप्शंस में देखो 400, 800, 800, 900, 900 मतलब ये आपका करेक्ट आंसर। आर यू क्लियर विद द कैलकुलेशन? Yes, sir. फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बट ए क्यूब वाला कैलकुलेशन कहीं बार आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर सिंपल 2 क्यूब है, 8 क्यूब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 28 या 2.8, 5.3, 7.9 ऐसे क्यूब्स होंगे ना तो फिर तकलीफ होगी। इसीलिए क्यूब फाइंड करने का सिंपल ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर polonium crystallizes in cubic primitive cell. Cubic primitive cell is same as what? Yes, sir. SCC। मतलब इसका Z will be equal to 1. 1। If edge length is 3 angstrom, A दिया है, calculate the theoretical density of polonium, atomic weight is 207 ग्राम। अब ऑप्शंस में आपको जो डेंसिटी पूछा गया है ना, दैट इज AMU पर एंगस्ट्रॉम। नॉर्मली अपना ग्राम पर cm क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यहाँ पे AMU और एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लेंगे हम, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू Zm बाय A क्यूब इंटू Na। नाउ टू गेट द यूनिट, M should be substituted in AMU and A should be substituted in angstrom, तभी आपने को रिक्वायर्ड यूनिट मिलेगा। ठीक है, नाउ ग्राम और AMU का रिलेशन क्या था? 1 gram is equal to AMU 1 ग्राम is equal to NaAMU. 1 ग्राम इज NaMU, या फिर 1 AMU इज रेसिप्रोकल ऑफ Na, रेसिप्रोकल ऑफ Na, राइट। एक AMU जो है वो 1 बाय Na ग्राम्स होता है, या फिर 1 ग्राम NaAMU के बराबर होता है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर मोलर मास जो है डायरेक्टली Na के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर लो, Na कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू Na इंटू द मोलर मास, कितना दिया है 207, एंड डिवाइडेड बाय A एंगस्ट्रॉम में ही है तो इसका क्यूब डायरेक्टली देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 27, और Na को ऐसे ही रखेंगे तो ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो आपका रेशियो आ रहा है 207/27,
ये आई थिंक 3 टाइम्स जाता है, तो दिस इज 3 इंटू 6, 27 9 और 3 9 और फर्दर होगा 3 और ये 23, तो रेशियो मिल रहा है 23/3। आंसर है 2। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, hexagonal close packing, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन HCP पर यूनिट सेल? 6। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब ये मैंने पूरा समझाया है कि HC में 17 लेटाइस पॉइंट्स होते हैं, 17 लेटाइस पॉइंट्स। कौन से? 12 कॉर्नर्स होते हैं, 2 फेस सेंटर होता है और 3 बॉडी सेंटर होता है। HCP के केस में दिस इज 1/6, फेस सेंटर इज हाफ एंड बॉडी सेंटर इज 1। अब जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। दिस इज हाउ वी गेट। बट वापस मैं बोल रहा हूँ, इतना टाइम नहीं रहेगा जहां पर आप इतना सोचोगे फिर Z का वैल्यू लाओगे। HCP में Z 6 होता है, डायरेक्टली याद रखना है। तो विद Z इक्वल टू 6, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीवीज आर प्रेजेंट? टीवीज हमेशा 12. डबल होते हैं Double. एंड OVs आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, तो 6। तो टोटल वॉइड्स इन HCP अगर कहीं पूछा टोटल OV और TV कितना है, तो फिर टोटल वॉइड्स will be equal to 12 plus 6 and that's 18. And what is the coordination number of HCP? 12. 12. And what is the coordination number of an atom in its own layer in a closed pack arrangement? एक सिंगल लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2. हम्म? 2. नहीं, क्लोज पैक अरेंजमेंट का एक लेयर मतलब 2 डायमेंशनल लेयर नहीं, सॉरी 1 डायमेंशनल लेयर नहीं, आप सिर्फ 1 डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हो इसीलिए 2 बोल रहे हो। Closed packed arrangement matlab, if I have the atoms in 1D arranged like this, a closed pack arrangement is having the second layer in the same alignment or in the unaligned manner. ज्यादा पैकिंग अच्छा कहां पर होगा? A टाइप में या AB टाइप में? AB टाइप. AB टाइप में। अलाइंड में हमेशा वॉइड ज्यादा होते हैं, नॉन अलाइंड में वॉइड्स कम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनअलाइंड मैनर में रखेंगे। तो ये इसका एक लेयर है ना। अब इस लेयर में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, वो पूछा है। तो एक एटम को कंसिडर करो, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. 6. समझा क्वेश्चन? Yes, sir. The fraction of empty space in AB type arrangement in 3D. 3D में AB मतलब HCP की ही बात कर रहे हैं, तो empty space कितना? 0.6. क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 74% आता है और HCP का वॉल्यूम भी मैंने बताया हुआ है, इट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू? 24√2R. 24√2 R³। तो ये सारे फैक्ट्स हैं Z के HCP के रिलेटेड। नेक्स्ट, FCC. The octahedral voids in a face-centered cubic, which is either FCC or CCP, एक ही होता है, are located at. OVs किधर होते हैं? Where are OVs present? At all the edge centers and at the body का Body. center. तो 12 एज सेंटर्स होते हैं और एक बॉडी सेंटर होता है, वहां पर ओवीज लोकेटेड होते हैं और ये हम NaCl के केस में कर चुके हैं। आगे, in a face centered lattice of x atoms, the moment you see face centered lattice, तो x की वैल्यू हो गई 4। y atoms occupy half of TV and 1/4 of OV, octahedral holes. तो y कितना होगा? हाफ ऑफ 8, क्योंकि TVs डबल होते हैं,
एंड 1/4 ऑफ ओवी, वो तो 4 ही होंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = 5. तो x:y का जो रेशियो है दैट इज 4:5, hence the formula is x4y5. समझता है ये क्वेश्चंस एवरीवन? Yes, sir. Then in a CCP structure of x atoms, once again CCP मतलब FCC यानी x 4 है, y atoms occupy half of OV, तो y half of 4 है यानी y 2 के बराबर है. अब if one y atom and x atom from each unit cell is replaced by Z, then the formula of the compound will be. तो जब रिप्लेस नहीं किया तब अपना फॉर्मूला x4 है और y2 है. अब बोला एक y और एक, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, 1 y and 1 x atom from each unit cell is replaced by Z. तो x 3 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा और उसकी जगह पे 2 z आएंगे तो z 2 हो जाएगा. हो गया नया फॉर्मूला तैयार, x3 y1 z2. समझा? Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ध्यान देना. In a particular structure, A occupies all the corners and B occupy the face centers. What is the formula of the compound? AB3. AB3. Simple. अब यहाँ पर बोला है कि if one corner is removed from the unit cell, what is the formula? एक कॉर्नर को निकाल दिया, A7B24. सुपर. क्योंकि एक कॉर्नर को निकालने के बाद अब ए का कंट्रीब्यूशन 7 कॉर्नर के हिसाब से 7/8 होगा. समझा? कॉर्नर्स अभी 7 ही है और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 या 1 में से 1/8 माइनस करो तो भी मिल जाएगा 7/8. आता है समझ में? और बी में कुछ नहीं किया है तो बी का फेस सेंटर तो 3 था, तो A:B जो है वो 7:8 और 3 है. तो फाइनली जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है वो A7B24 हो जाएगा. ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है. अब इसमें और वेरिएशंस क्या आ सकता है कि एक फेस सेंटर को रिमूव कर दिया, 2 फेस सेंटर रिमूव कर दिया, 2 फेस सेंटर एक कॉर्नर रिमूव कर दिया, तो क्या होगा फॉर्मूला. तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना. समझा? Yes, sir. Next, this is important question. The number of atoms in 100 gram of FCC crystal with density 10 gram per cm cube and cell H equal to 100 picometer is equal to number of atoms in 100 gram. Now इसको solve करने का एक simple cross multiply वाला method है. We know that one unit cell of FCC contains how many atoms? 1, नहीं, FCC 4. 4. FCC में 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल. Z ना. Yes, sir. अब एक एटम का मास कितना होता है, एक सिंगल एटम का? M/N. मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो. तो 4 एटम का मास होगा 4 टाइम्स मोलर मास अपॉन द एवोगैड्रो नंबर ग्राम्स में, राइट? तो ये स्टैंडर्ड एफसीसी का कॉन्सेप्ट है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं और उसका मास 4m/Na के बराबर होता है. तो आपसे पूछा है कि 100 ग्राम का अगर क्रिस्टल है तो उसमें एटम्स कितने होंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको x ढूंढना है. और मान लो अगर 100 ग्राम में यूनिट सेल कितना है तो यहाँ पर y यूनिट सेल्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म. तो x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 4 अपॉन 4m/Na. 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 Na/m. एक ही अननोन है आपके पास दैट इज मोलर मास और वो आप ढूंढोगे वाया डेंसिटी, है ना? आ रहा है समझ में?
ऐसे क्वेश्चंस में डेंसिटी के थ्रू मोलर मास ढूंढना है, तो D इज इक्वल टू 10 Zm by A cube into 6। ठीक है, ग्राम्स में अगर दिया है और ग्राम पर cm क्यूब में डेंसिटी दिया है तो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो दिस इज 10 इक्वल टू 10 इंटू Z4 होगा, मोलर मास फाइंड करना है अपॉन A। नाउ 100 पिकोमीटर को cm में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 आता है ना, pm को cm में कन्वर्ट करना। Yes, sir. ठीक है, जो भी 3 डिजिट नंबर है उसका स्टैंडर्ड नोटेशन और 10 पावर माइनस 8। So This minus will be 10 1। rate. सॉरी, Minus 10 rate. नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया मैंने। ये 100 तो 100 का 10⁻² भी मैंने बैलेंस कर दिया ना, Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसा आएगा। और फिर मैंने 1 दिया, तो मैंने क्या बोला था, 425 pm अगर दिया है तो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्टैंडर्ड नोटेशन इनटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। वो नॉर्मल खाली पावर्स को बैलेंस किया और कुछ नहीं। एंड इंटू 6 नहीं रे बाबा, 6 3 नहीं 6, तो ये 6, तो 10 10 कैंसिल हो गया, मोलर मास आ गया 1.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये किसी का स्टैंडर्ड मोलर मास नहीं है, बट कोई एटम, हाइपोथेटिकल एटम का है। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 100 टाइम्स 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.5। कैंसिल हो जाएगा, ये 400 स्टैंडर्ड नोटेशन में 4 इंटू 10⁻25 एटम्स के बराबर हो। एंड दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन 1। क्लियर? Yes. तो इस क्वेश्चन से 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जहां पर आपको कितने एटम्स है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल में या कितने यूनिट सेल्स है, वो दोनों आप फाइंड कर सकते हो। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई रिलेशन, बस। नेक्स्ट, a good question. Which of the following shaded plane in FCC lattice contains arrangement of atoms as shown by circles? ऐसा अरेंजमेंट कौन से प्लेन में आएगा? Now, first case में for a FCC, we will have the atoms at the corners and at the face center. ठीक है, ये वाले प्लेन में एक्चुअली कोई भी एटम नहीं आएगा, बिकॉज ना तो कॉर्नर है ना ही सॉरी फेस का सेंटर है। तो यहाँ पर एटम आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट से मैच नहीं कर रहा है। अगर ये वाला प्लेन लेते हैं जो कि एक फेस ही है, तो उसमें कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे ऐसे 5 एटम्स आएंगे। ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया, जिसमें कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और फेस के सेंटर पे है। Now look at this arrangement of 3 atoms together in one face and 3 in the another face. ये फेस डायगोनल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बॉडी डायगोनल मतलब ये हो जाएगा, ये लाइन फेस डायगोनल है, तो ये अरेंजमेंट मैच करता है, तो आंसर 3rd है। समझा? Yes, sir. Next, this should be simple. Which one of the following schemes of ordering closed packed sheets of equal sized spheres does not generate a closed packed lattice? कौन सा अरेंजमेंट क्लोज्ड पैक्ड लैटिस नहीं देगा? What is the simple hint to be applied? आज के सेशन में ही बोला है मैंने। ABC type of packing gives you CCP, which is definitely a close packing with a packing efficiency of 74%. ABAC ये कोई स्टैंडर्ड वाला पैकिंग नहीं है, लेकिन since the layers are having different arrangements, this will definitely provide a close packing. Next is अब्बा अब्बा, ABBA। अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई 2 लेयर्स में अलाइंड अरेंजमेंट है
तो उसमें हमेशा वॉइड ज्यादा जनरेट होते हैं, और वॉइड ज्यादा तो पैकिंग एफिशिएंसी कम, और ये अरेंजमेंट क्लोज पैक लैटिस जनरेट नहीं करेगा। हिंट इतना सा है कि नो टू लेयर्स शुड बी इन द अलाइंड मैनर, इसीलिए आंसर थर्ड है। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Next, about voids. A double triangular void surrounded by 3 spheres above and 3 spheres below is called. It's the definition of Octahedral. octahedral void. So the name octahedral is given on the basis of 8 faces of an octahedron, but the coordination number is equal to 6. 6, because ये 6 spheres से बनता है, 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 ट्राइंगुलर वॉइड्स कुछ इस तरह से अरेंज होता है, और ये जो है आपका ओवी होता है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड, C atoms form CCP lattice with A atoms occupying all the TVs. Tell me, where are the TVs located in a FCC unit cell? कैसे डिस्क्राइब किया था? Body center of small cube. बॉडी सेंटर ऑफ स्मॉल 8 क्यूब्स ऑफ अ बिगर क्यूब। तो इस वाले क्यूब को अगर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और बीच में से काटोगे, 8 छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे। उन क्यूब्स का बॉडी का सेंटर टीवीज होता है। And B atoms occupy all the OVs, octahedral voids. A and B atoms are of the appropriate size such that there is no distortion in the CCP lattice. A और B का size similar है। Now, if a plane is cut as shown, then type of voids and their numbers which are present at the cross section would be. तो ये वाले क्रॉस सेक्शन में कौन से वॉइड्स आते हैं? तो ये आपका एक फेज डायगोनल है, ये भी फेज डायगोनल है ना, और ये प्लेन बॉडी डायगोनल का बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पर कॉर्नर वाला तो कोई वॉइड नहीं होता है ना, कॉर्नर इज नॉट अ वॉइड। इज द फेस सेंटर अ वॉइड? फेस सेंटर भी कोई वॉइड नहीं होता। एज सेंटर इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे एज का सेंटर ओवी होता है ना, फिर बॉडी का Yes, sir. सेंटर भी ओवी होता है। OV, और इस बॉडी डायगोनल पे अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे वॉइड्स दिखाऊं, तो ये कौन से वॉइड्स है? TV. टीवी। मतलब मैंने सारी पोजीशंस आपको बता दी है। तो ये जो 4 रेड स्फीयर्स दिखा रहा हूं, दे आर बेसिकली द टीवीज। आया समझ में? तो टीवीज 4 है और ओवीज 3 है। The answer is 3 and 4, OVs and TVs respectively. ठीक है? नेक्स्ट, रेडियस रेशियो एंड आयोनिक स्ट्रक्चर। रेडियस रेशियो का एक टेबल है which is very important. What was the range with which it starts? 0.1. 0.155। अब अगर रेंजेस को देखोगे तो 0.155 टू 0.225, 225 से 414, 41 से 732 और 732 से 1। Coordination number in the order are 3, 4, 6 and 8. The voids in the order are triangular, TV, OV and cubic. और उसके corresponding examples है जिसके ionic structure भी हमने डिस्कस किए हैं। 3 मेन आयोनिक स्ट्रक्चर्स है, रॉक सॉल्ट, स्पेलराइट या जिंक ब्लेंड एंड सीजियम क्लोराइड। इन तीनों के डिटेल याद रखना विथ अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली। ठीक है? अब पहला क्वेश्चन, MgO exists in NaCl type lattice which is a rock salt structure.
तो जैसे ही बोलते हैं एग्जिस्ट इन NaCl, मतलब जो भी NaCl के लिए समराइज किया था वो MgO के लिए भी वैलिड है। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ Mg2 प्लस आयन R कितना होगा? बोलो फटाफट। NaCl रॉक सॉल्ट के लिए क्या क्या चीजें मैंने बताई थी? पॉइंट 1, इन NaCl यूनिट सेल Cl माइनस ऑक्यूपाई ऑल द FCC lattice FCC points and Na plus occupies OVs. OVs. all OVs. तो FCC lattice points यहाँ पर 4 होते हैं और OVs भी 4 के बराबर होते हैं. That is why Z of NaCl per unit cell will be equal to 4. 4. ठीक है, ये एक्चुअली पॉइंट 1, ये पॉइंट 2. फिर थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोई भी आयोनिक सॉलिड के दो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, वन विथ रिस्पेक्ट टू कटायन एंड अदर विथ रिस्पेक्ट टू अनायन. याद रहे, दो कोऑर्डिनेशन नंबर. तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितने Cl माइनस उसको टच कर रहा है. तो जब आप 6. स्ट्रक्चर देखोगे तो 6 आएंगे और यहाँ पर कितने Na प्लस टच कर रहा है वो भी 6 आता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है. एंड फोर्थ, द रेडियल डिस्टेंस R of Na plus R of Cl minus was equal to A/2. A/2. और ये आता भी कैसे है वो भी सिंपल है. कोई भी एक फेस उठा लो NaCl के क्रिस्टल का, तो यहाँ पर आपके पास Cl माइनस है कॉर्नर पे, यहाँ पर भी कॉर्नर पे Cl माइनस और H के सेंटर पे Na प्लस आयन है. तो ये पूरे का डिस्टेंस A होता है और इस डिस्टेंस में 2R of Cl minus and 2R of Na plus होता है. That's how we get this relation. ठीक है, तो अब आपसे पूछा है नियरेस्ट नेबर ऑफ Mg2 प्लस. नियरेस्ट नेबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्साइड आयंस के बराबर होगा. समझा? That's all. Next, if the distance between Na plus and Cl minus ions in NaCl crystal is a picometer, what is the length of the cell edge? What is the length of the cell edge? कितना? 2A. 2a. तो बेसिकली यहाँ पर R of Na plus plus R of Cl minus बोला गया है A. अब ये वाला A और एज लेंथ वाला A अलग होता है. ठीक है, तो टाइम बिंग इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ. तो आपको जो R of Na plus और R of Cl minus दिया है, अल्फा दिया है. तो पूछा है कि सेल एज A कितना होगा? A जो है 2 इंटू अल्फा के बराबर होगा, इसलिए द आंसर इज 2a. समझा? ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि A यहाँ पर R of Na plus plus R of Cl minus के बराबर दिया है. ओके, नेक्स्ट, anti-fluoride structure is derived from fluoride structure by. Now apart from the three important structures, मैंने फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल और डायमंड, ये 5 एडिशनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, उसका रिवीजन करा देता हूँ. फ्लोराइड इज द स्ट्रक्चर for the alkaline earth metal fluorides. Example, CaF2. And antifluoride is the structure for the oxides or sulfides of alkali metals. And the example is Na2O, sodium oxide. ठीक है, अब मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट बोला था, फ्लोराइड में जो अरेंजमेंट है वो उल्टा है और एंटी फ्लोराइड में जो अरेंजमेंट है वो सीधा है. फ्लोराइड नाम सीधा है, अरेंजमेंट उल्टा है. एंटी फ्लोराइड नाम उल्टा है लेकिन अरेंजमेंट सीधा है. इसका मतलब क्या? नॉर्मली कोई भी आयोनिक क्रिस्टल में अनायंस बड़े होते हैं तो वो लैटाइस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करते हैं
एंड कटाइंस छोटे होने की वजह से वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, हाँ कि नहीं? Yes, sir. बट फ्लोराइड्स के केस में बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोराइड आयन, द अनायन हियर विल ऑक्यूपाई द anion will occupy the हाँ voids. voids. तो ये उल्टा अरेंजमेंट, इसलिए मैंने बोला फ्लोराइड नाम सीधा है, अरेंजमेंट उल्टा है। ऐसे याद रखो, बहुत इजीली याद रहता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने समराइज किए थे। wherein the calcium ions occupy the FCC lattice points, जो कि 4 के बराबर होगा, एंड फ्लोराइड छोटा होने की वजह से सारे TVs ऑक्यूपाई करेगा, which is equal to 8. That is why if I take the ratio of calcium is to fluoride, I get 4 is to 8, and this is equal to 1 is to 2. That's how we get Ca1 and F2. Formula तैयार। तीसरा, coordination number of Ca plus 2 is to F minus is in the ratio हाँ 2:1, यानी ये 8:4 के बराबर था। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी बताया था कि अगर कोई आयोनिक सॉलिड में atoms are in the ratio x is to y, then its coordination number is Y is to X. y is to x. ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। तो अब एंटी फ्लोराइड में उल्टा कर लो, और उल्टा करेंगे तो अरेंजमेंट सीधा हो जाएगा। मतलब anion occupy FCC lattice points equal to 4, एंड कटाइन छोटा होने की वजह से सारे TVs ऑक्यूपाई करेगा 8। अब हम अगर Na प्लस इज टू O माइनस 2 का रेशियो ले लेते हैं तो 8:4 के हिसाब से 2:1, ये हो गया 2:1। एंड तीसरा, coordination number of Na plus is to O minus 2 will be 4:8। मतलब अगर आपसे पूछते हैं Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4, O माइनस 2 का 8, ऐसा है। समझा? Yes, sir. तो एंटी फ्लोराइड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फ्लोराइड, कैसे? Option 2. By interchanging the position of the positive and negative ions in the lattice। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस था? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम्स दूर दूर जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा? Decreases. तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। और अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एटम्स क्लोज आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बढ़ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर NaCl का जो क्रिस्टल है दैट कैन चेंज टू NaCl का क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो इट कैन चेंज टू ZnS टाइप का क्रिस्टल विद अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आ रहा है कि नहीं समझ में? सब स्टेटमेंट्स दिया है मैंने। Yes, sir. नेक्स्ट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड हैज अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड मतलब CaF2 सोचने का। तो which of the following statement is true for the structure of strontium chloride? क्लियर आंसर बोलो। Strontium ions are in a BCC arrangement, are in FCC arrangement. Chloride is at the center of cube of 8 strontium ions. Yes, strontium is at the center of a tetrahedron of 4 chloride ions. अरे भाई अभी तो डिस्कस किया। 2. Strontium ions are in the face centered cubic arrangement.
नेक्स्ट कम्स स्पाइनल का क्वेश्चन. अब फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड के अलावा वी हैव स्पाइनल वर्सेस इनवर्स स्पाइनल. क्या क्या चीज याद रखना है वो मैंने डिटेल में दिया है. तो स्पाइनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ the anions of group 16, which can be oxide, sulfide or selenide. Oxide, sulfide or selenide. And it consists of two cations, A with a +2 and B with a +3. The oxide ions occupy the FCC lattice points. That is why this will be equal to 4 per unit cell. The cation A occupies 1/8 of TVs. और 1/8 of TVs 1 के बराबर होता है. And the trivalent cation occupies 1/4 of OVs. Sorry, half of the OV. And half of OV 2 के बराबर हो. इसलिए इसका फॉर्मूला 1 2 का 4 के बराबर होता है. That is AB2O4. That's how we get the formula. ठीक है. तो एक स्पाइनल का क्रिस्टल 8 यूनिट सेल्स के बराबर होता है और हर यूनिट सेल में AB2O4 का अरेंजमेंट होता है. तो एज पर द स्टेटमेंट A cation occupies 1/8 of the TV and B cation occupies half of the OV is the correct answer. Answer simple है स्पाइनल का. अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं. The two most important example is Mn3O4 and D block elements में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया था फ्रॉम क्रोमाइट ओर. वो भी स्पाइनल स्ट्रक्चर के बराबर होता है. अब वर्सेस इनवर्स स्पाइनल. इनवर्स स्पाइनल का फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट या वॉइड्स का ऑक्यूपेंसी अलग होता है. क्या अलग होता है? इनवर्स स्पाइनल कंसिस्ट ऑफ एफसीसी अरे ऑफ ऑक्साइड आयंस. तो अगेन एफसीसी लैटाइस पॉइंट्स ये 4 के बराबर हो. यहाँ पर जो डाइवेलेंट कटायन है दैट इज वन that is occupying 1/4 of the OVs and that will be equal to 1. अब जो trivalent cation है that occupies 1/8 of the TV and 1/4 of the OV. तो 1/8 TV 1 हो जाएगा, 1/4 OV 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 के बराबर. अगेन 1 2 का फॉर्मूला AB2O4 ही होगा लेकिन void occupancy is different. And the example of inverse spinal is Fe3O4. Most important example. Magnetite, Fe3O4. मैंने स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन डायमंड का था. अब डायमंड के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई थी. डायमंड हैज एन अरेंजमेंट सिमिलर टू किसके जैसा है? स्पलेराइट, जिंक ब्लेंड. भाई ये सब दे चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं. आई कैन एक्सपेक्ट द आंसर्स. सो पॉइंट 1, सिंस इट इज सिमिलर टू ZNS, here the carbon atom occupy the FCC lattice points and 50% of the TVs. तो 4 lattice points FCC का और 50% TV 4 यानी यहाँ पर 8 होता है इसका Z. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8. पॉइंट 2, पैकिंग फ्रैक्शन. इसका पैकिंग फ्रैक्शन स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की वजह से इट वाज जस्ट 0.34 यानी परसेंटेज में 34% ऑक्यूपेंसी ही होता है. तो काफी सारा स्पेस एम्प्टी रहता है, अंदर से हॉलो रहता है. ठीक है. और इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट था 8R = √3 है. इसको मैंने बोला था BCC के जैसा याद रखो. तो BCC में 4R = √3 है, उसका 68% होता है. यहाँ पर 8R = √3 है और 34% होता है पैकिंग एफिशिएंसी. दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर. क्लियर है? तो ये भी एक स्टैंडर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो देखो NaCl, ZNS, सीजियम क्लोराइड
फ्लोराइट, एंटी फ्लोराइट, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल एंड डायमंड, 8 स्ट्रक्चर्स है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. यू शुड रिमेंबर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरी स्ट्रक्चर. ठीक है. Yes. Next, defects. As a result of Schottky defect, what is the effect on density? Decreases. Decreases. Because Schottky defect arises due to cations and anions missing from the lattice structure. अब यहाँ पर थियोरी में मैंने बोला था इक्वल cations and equal anions missing, बट ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि अगर NaCl है तो Schottky डिफेक्ट में इक्वल Na+ और इक्वल Cl- मिसिंग होगा, so that the electrical neutrality is maintained. बट अगर कैल्शियम क्लोराइड हुआ तो उसमें इक्वल कटाइन इक्वल अनाइन मिसिंग नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इस केस में फॉर एवरी 1 कैल्शियम देयर विल बी 2Cl. 2Cl- मिसिंग. तो ये इक्वल नहीं है, समझा. वो NaCl के रेफरेंस से बोलो तो इक्वल ठीक है, लेकिन CaCl2 से बोलोगे तो इक्वल गलत है. It's the cations and anions missing from their regular lattice points in such a manner that the electrical neutrality is maintained. ठीक है. तो Schottky में डेंसिटी डिक्रीज होता है, बट फ्रैंकेल में क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, डेंसिटी रिमेन्स Constant. कांस्टेंट. नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, क्योंकि वहां पर अपनी नॉर्मल पोजीशन से उड़कर यानी हटकर वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, F centers in an ionic crystal are F centers. Now F center का कॉन्सेप्ट जो है that was under the topic non stoichiometric defect, जहां पर the ions are not in a proper stoichiometric ratio. उसके अंदर 3 केस था, 2 मेटल एक्सेस डिफेक्ट का और 1 मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का. मैं तीनों डिस्कस कर लेता हूं वापस, ध्यान देना. केस 1, केस 1, if I talk about the metal halides of alkali metal family, NaCl. So if NaCl crystal is heated in the vapors of sodium, it changes to yellow color. NaCl when heated in the atmosphere of sodium, it changes to yellow color. अब ऐसा क्यों होता है? जब इसको हीट किया जाता है in the vapors of sodium, what happens? The sodium, because of the absorption of energy, ionizes by losing an electron into Na+. और ये Na+ ions NaCl के सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, Na+. और क्रिस्टल के अंदर तो हमारे पास Na+Cl-, Cl- Na+ का परफेक्ट अरेंजमेंट है ही. So now when the sodium atom ionizes, this Na+ cation takes away one of the chloride anion from the lattice. तो एक क्लोराइड निकलने की वजह से यहाँ पर अनायन की वेकेंसी हो जाती है, और ये अनायन वेकेंसी फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन से, so that the electrical neutrality is maintained. तो अब क्या हुआ? Because of Cl- being absorbed by the external Na+, the metal ions now are in excess. देखो 2 Na+ है, 1 Cl- है, इसीलिए डिफेक्ट को नाम दे दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता है समझ में? एंड किसकी वजह से ये हुआ? ड्यू टू द अनायन का वेकेंसी. और जो अनायन की वेकेंसी है वो फुलफिल किससे हुई? इलेक्ट्रॉन से. अब इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से द क्रिस्टल हैज अ कलर, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो वेकेंसी ऑक्यूपाई करता है इसको बोलते हैं फार्बेन सेंटर, जिसको F सेंटर बोला गया है या कलर सेंटर.
So the color of the crystal when heated is due to the F centers in the ionic crystal, which is nothing but the electron occupying the anion vacancy. समझा? Yes, sir. हेलो, समझा? अब केस टू था जिंक ऑक्साइड के हीट करने का. अब जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू जिंक +2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीजेस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो अनायन ऑक्साइड जो है वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड जिंक अपने आयन के फॉर्म में है. तो अब ऑक्साइड के कंपैरिजन में कटाइन जो है वो एक्सेस में आ चुका है. दैट इज वाई यहाँ पर भी द डिफेक्ट वाज नेम्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बट इसको बोला था ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायंस. ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायंस. ठीक है. तो हर ZnO के लिए एक Zn+2 बढ़ जाएगा ना, इसलिए फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा Zn1 + XO. ठीक है. और तीसरा सिनेरियो, तीसरा केस था मेटल deficiency defect. Such type of defect is observed in a non-stoichiometric metallic oxides. जैसे अगर हमारे पास Fe0.98O दिया है, ठीक है, तो इस ऑक्साइड में it contains the ferrous as well as ferric ions, and if you consider Fe0.98O as Fe98 and O100, आपको समझेगा कि मेटल आयंस जो है वो ऑक्साइड यानी अनाइन के कंपैरिजन में कम है. कम है इसका मतलब यहाँ पर दिस इज शोइंग अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो ये थे 3 केसेस. क्लियर? Yes. Any doubt in this part? No, sir. Next, in NaCl and AgCl, if radius of Na plus is greater than Ag plus, so NaCl has higher tendency to show Schottky defect than AgCl, या lower tendency, या NaCl has higher tendency to show Frankel defect than AgCl, या both have equal tendency to show Frankel and Schottky. अब अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो Schottky डिफेक्ट में द कटायंस एंड अनायंस शुड बी ऑलमोस्ट Same in size. सेम इन साइज, बट Frankel डिफेक्ट में वन ऑफ द आयन शुड बी Larger. larger such that the smaller ion occupy the interstitial position. ठीक है. तो अब अगर Na plus बहुत बड़ा है as compared to Ag plus, so NaCl will have a higher tendency to show which defect? Schottky, क्योंकि छोटा कटाइन होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा सकता है, और हमें पता भी है कि NaCl Schottky बताता है, AgCl Frankel बताता है. इनफैक्ट AgCl और AgBr shows both Schottky and Frankel, but that is an exceptional case. अगर नॉर्मली हम सोचे तो NaCl सिमिलर साइज होने की वजह से Schottky बताएगा और AgCl Frankel बताएगा. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट. And next, which of the following statement are correct in context of point defect in a crystal? तो आपके पास 2 क्रिस्टल दिए गए हैं AgCl and CaF2. तो AgCl has anion Frankel defect and calcium fluoride has Schottky defect. AgCl has cation Frankel defect and CaF2 has anion Frankel defect. या दोनों में anion Frankel है या दोनों में Schottky है. अब कैसे इसको एनालाइज करेंगे? First thing, tell me
Do the cations and anions have similar sizes or there is a large difference? Difference. बड़ा डिफरेंस है. बड़ा डिफरेंस है मतलब शॉर्टकी तो होगा नहीं. इट विल बी अ फ्रैंकेल डिफेक्ट. अब फ्रैंकेल में भी AgCl के केस में Ag प्लस छोटा होने की वजह से इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो ये कटायन फ्रैंकेल डिफेक्ट बोला जाएगा. बट कैल्शियम फ्लोराइड में हमें पता है इट हैज अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर जिसमें फ्लोराइड आयन छोटा है, उसकी वजह से वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और ये केस में अनायन फ्रैंकेल डिफेक्ट बताएगा. समझा? Yes, sir. Next, exercise 2 के questions. In a FCC unit cell, a line is drawn from a corner such that it passes through no octahedral or tetrahedral void. The line could be. ये भी एक पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं. चलो मुझे बताओ, along the body diagonal do we have any void? Body का diagonal. Yes. Yes. Yes, we have an OV. Along the edge OV. OV होता है. Along the face diagonal Zero. कोई भी void नहीं होता है. फेस डायगोनल में कॉर्नर और फेस पे एटम्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर void होगा ही नहीं. फेस डायगोनल आपका आंसर है. The flame colors of metal ions are due to. ये भी कर दिया हमने. Flame colors. बोलो. Excess. Metal excess defect. In which of the following compounds the cations are present in alternate TVs? Alternate. Now all the structures are well known. मैंने discuss किया. ZNS, because here the zinc plus 2 occupies 50% of TVs only. तो 8 TVs में से वो 4 TVs में ही present होगा, इसलिए alternate TVs. तो ये ZNS का था. रॉक सॉल्ट मैंने डिस्कस किया. फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड दोनों डिस्कस किया है. आगे. A compound MpXQ has cubic closed packing arrangement of X. यानी X तो 4 है, वो कंफर्म है. CCP माने FCC. Its unit cell structure is shown below. तो empirical formula of the compound is. तो X जो सर्कल से बताया है वो आप देखोगे तो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है और उसी से हमें 4 मिलता है. तो X तो 4 है, वो पता ही है. अब जो स्क्वायर M है, इट्स ऑक्यूपाइंग एच सेंटर एंड द बॉडी सेंटर, लेकिन सारे एच सेंटर नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है. इट्स ऑक्यूपाइंग ओनली 4 एच सेंटर्स. तो M का कंट्रीब्यूशन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 4 into what is the contribution for H center? 1/4. 1/4. एंड एक बॉडी सेंटर पे जिसका 100% होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2. यानी mx का फॉर्मूला होगा m2x4 या एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा mx2. दैट इज आंसर ऑप्शन 2. ये जेई का क्वेश्चन है. दिस वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स. ठीक है, तो आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं. Experimentally, it was found that a metal oxide has formula M0.98O. तो ये देख के ही समझ में आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का क्वेश्चन हुआ. Metal M present as 2+ and 3+ ion in its oxide. The fraction of the metal which exists as M3+ would be. मतलब कितने कटायन +2 है और कितने +3 है, उसका क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पर सबसे पहली बात, M0.98O could be written as M98O100.
और ये M98 जो है उसमें सम विल बी M+2 एंड सम विल बी +3. अब मुझे +3 ढूंढना है, तो लेट्स से द नंबर ऑफ +3 cations आर X, तो ये हो जाएगा 98 - X. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Now this is a neutral molecule, तो redox का concept, the sum of the charges will be equal to 0. खत्म. अब मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर +2 वाले 98 - X आयंस है, +3 वाले X है, और -2 वाला ऑक्साइड 100 है, and this sum will be equal to 0. So 2 into 98 is 196 minus 2x plus 3x minus 200 equals to 0. So x is equal to 4. मतलब जो फ्रैक्शन है 3 प्लस कटाइन का, that is 4 out of 98. 98. So that's 4 upon 98, and परसेंटेज में बोला है, परसेंटेज बोला है तो into 100 कर लेंगे. So it's 400 by 98, almost 4 point something something. That something something is option 2. समझा कैसे सॉल्व करना है? सिंपल है. Yes, sir. 98 exists as +2 and +3. एक को x रखो, दूसरे को 98 minus x कर लो, then redox का sum of the charges equal to 0. फिर मैथमेटिक्स है. Next, which of the following compound is metallic and ferromagnetic? फेरो में आयन, गडोलिनियम, CrO2 ये एग्जांपल्स दिए गए हैं. CrO2, gadolinium, iron, these are important examples of ferromagnetic and should be remembered. JEE 2016 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल है, इसमें आपको कोई लॉजिक ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्टली एग्जांपल है तो याद रखना है. CrO2 ferromagnetic. अच्छा, डिफरेंस क्या था? There were 3 important types: ferro, ferri and anti-ferro. फेरो के केस में all the dipoles, magnetic dipoles are in the Same direction. same direction, such that the net magnetic moment is very high and it acquires permanent magnetism. ये फेरो था. फेरी के केस में फेरी मतलब the dipoles will be in opposite direction in such a way that the net dipole moment is not zero. मतलब मान लो 5 मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, तो यहाँ पर 2 तो कैंसिल ऑफ हो गए, फिर भी एक बचा. तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 ना हो तो वो फेरी होता है. और अगर आपके पास डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विच आर इक्वल इन नेचर, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा? डाइपोल्स तो है लेकिन इक्वल और ऑपोजिट है, सब कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर ये फेरो जैसा दिखने वाला सब्सटेंस एक्चुअली मैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा, इसको बोलते हैं एंटी फेरो. क्लियर है तीनों का डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. और फिर इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल याद रखो. 2016 में जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पाइनल का, इनवर्स स्पाइनल का, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो मगब ही करना है आपको. नेक्स्ट, which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? 2018 जेई बच्चे जैसा क्वेश्चन. and फ्रैंकेल +4, इसलिए बोल रहा हूँ सॉलिड स्टेट बहुत बहुत स्कोरिंग है. The one that is extensively used as a piezoelectric material. Piezoelectric materials are those which converts the mechanical stress or the mechanical energy into electrical energy. So when the mechanical stress is applied, that mechanical energy gets converted into
electrical energy, and that is extensively used via quartz. Quartz crystals जो होते हैं, they are piezoelectric material. ठीक है, इसके अलावा टाइटेनेट्स और जर्कोनेट्स जो होते हैं, टाइटेनेट्स ऑफ बेरियम, जर्कोनेट्स जर्कोनियम का, ये सारे भी पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर which fits properly at the center of the edge of a body centered cubic unit cell is. तो मैं बॉडी सेंटर का एक एज बना रहा हूं, ये आपका एक एज है। बॉडी सेंटर में द एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। तो एज पे आपको सिर्फ कॉर्नर एटम्स देखने मिलेगा। तो यहां पर पूछा गया है कि रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर जो कि सेंटर ऑफ द एज पे पड़ा रहेगा, यानी यहां पर मैं एक बहुत बड़ा स्फीयर कंसिडर करूं तो उसका आपको रेडियस पूछा है। समझा क्वेश्चन? हाँ या ना? तो एज लेंथ का ये वाला लेंथ तो ए के बराबर है, ये आपका आर है, ये आपका आर है। व्हाट विल बी द रेडियस इक्वल टू, एक्सपेक्टेड रेडियस क्या होगा? A√3/4. बट वो कैलकुलेट कैसे करना है? a माइनस 2r का हाफ, डायमीटर a माइनस 2r, उसका आधा कर लो। अब बीसीसी में 4r इक्वल टू √3a होता है, तो 2r जो है वो √3a/2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 0.866a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस 0.866a एंड उसका आधा। ठीक है, फ्रैक्शन में पूछा तो आप √3 के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं पूछा है तो जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दिस विल बिकम 0.134a का आधा, which is equal to 0.067a, and this will be the answer, option 4. Of course, √3a/4 is the fraction, वही आपका आंसर भी है। तो अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो √3/4a। समझा? Yes, sir. कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अलोंग द एज अगर हम एक स्फीयर को डाले तो उसका रेडियस कितना होगा, तो उस वॉइड का रेडियस एक्चुअली पूछा गया है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टाइप है। इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, मतलब CCP, यानी ऑक्साइड 4 है, Z इक्वल टू 4 है। Cations A occupy 1/6 of the TV and cation B occupy 1/3 of the OV. So formula of the compound is XYZ का सम फाइंड करना है। वापस जैसे स्पाइनल किया था ना वैसे ही, ये ऑक्साइड है, तो इस ऑक्साइड के लिए FCC यानी CCP लैटाइस पॉइंट्स है, तो ये 4 के बराबर हो गया। ए वाला जो कटायन है उसका चार्ज मुझे नहीं पता, तो A+ से लिख रहा हूँ, या +X ले लो, +Y ले लो। ठीक है, तो ए वाला कटायन ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ द टीवी, 1/6 ऑफ टीवी मतलब 1/6 ऑफ 8, और 8 that is equal to 4/3, and B occupies 1/3 of the OV यानी 4, तो ये भी 4/3 हो गया। ठीक है, अब सबको अगर 4/3 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा A का 1, B का भी 1 और O का 3 हो जाएगा। ये X, Y और Z है जिसका सम विल बी इक्वल टू 5, hence the answer is 5। समझा? Yes. Next, the coordination number of cation and anion in fluoride
and zinc blend are respectively X is to Y and A is to B. Find the sum of all of them. कैल्शियम फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? एट इज टू 4 था कि नहीं? Yes. और जिंक ब्लेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4. 4:4. अब चारों का सम पूछा है तो x + y 12 हो गया, a + b 8 हो गया, टोटल हो गया 20. आंसर है 20. Next, in a crystalline solid having molecular formula A to B, anion B are arranged in a cubic closed pack lattice and cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. What percentage of octahedral voids is occupied? What percentage of tetrahedral voids is occupied? And report your answer as 1 minus 2. Anion B are arranged in cubic closed packed, मतलब Z यहाँ पर 4 होगा, और जो cation है that are equally distributed between OV and TV. अब मुझे बताओ Z = 4 के लिए OV कितना होगा? 4 और TV होंगे 8. 8. अब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो A+ कितना OVs और कितना TVs ऑक्यूपाई करेगा? OV 4 है और TV 8 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. अरे इक्वल मतलब जितना OVs होगा उतना ही TVs भी होना चाहिए. तो OVs are lesser in number ना, मतलब it has to occupy all the 4 OVs and the TVs will be occupied only 4. इक्वल हो गए कि नहीं? So what is समझ रहे object कि A नहीं? plus X? सॉरी, Why is the charge plus X? यहाँ A to B दिया है ना, तो A is plus and B is -2 +1. हाँ, ये +1 है, ये -2 है. ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है कि कटाइन अनाइन दिया है तो x प्लस और माइनस लिख लिया मैंने बस. बट ये क्लियर है. Yes. तो अब पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओवी ऑक्यूपाइड. ओवी 4 थे, चारों ऑक्यूपाई हुए तो 100 हुआ. एंड टीवी कितना ऑक्यूपाई हुआ? 8 का 4 यानी 50. आंसर इज टू बी रिपोर्टेड एज 1 minus 2 which is 100 minus 50 and hence the answer is 50. Clear? Yes, sir. That's it. So I have covered all the MCQs of solid state. जितना भी एक्स्ट्रा सिनॉप्सिस था वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है विद द MCQs. ऑल द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड द डिफेक्ट्स, ये दोनों पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, और कोई डाउट्स इसके अलावा? No, sir.